جب سے تو اس گھر میں آئی ہے مفت کی روٹیاں توڑ کے کھا رہی ہے۔ دیکھ چھوٹی، اب ایسے نہیں چلے گا۔ تجھے آئے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ اب تو اور تیرا میاں کوئی نہ کوئی کام دھندا کرنا شروع کر دو۔ یہ بہت مشکل زندگی ہے جو میں تم لوگوں کے ساتھ گزار رہی ہوں۔ ہائے قسمت پھوٹی میری تو کہ میں تم جیسے لوگوں کے گھر آ کے بسی ہوں۔ تم میری دیورانی نہ ہوتی نا تو میں تجھے کب کا اس گھر سے نکال چکی ہوتی۔ بیٹا دیکھو، ایسے نہیں کہتے، تم سے چھوٹی ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ اس طرح کا ویوہار کرو گی تو وہ بھی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ تمہیں چاہیے کہ تم اس کے ساتھ پیار محبت سے رہو۔ کوئی بات نہیں، آج دن برے ہیں تو کبھی نہ کبھی اچھے دن بھی آ ہی جائیں گے۔ میں چاہتی ہوں میرے دونوں بیٹے ہمیشہ مل کر ایک ساتھ رہیں۔ بہت گرمی ہے آج، تھک گیا ہوں ہل چلا چلا کر۔ مجھے لگتا ہے مجھے زمین کا یہ ٹکڑا بیچ دینا چاہیے اور اس کی جگہ مجھے کوئی اچھا کاروبار کرنا چاہیے۔ یہ کام دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آج تو کوئی بھی گاہک نہیں آیا۔ کتنا کچھ پڑا ہے میری دکان میں مگر کوئی بھی خریدار نہیں آتا۔ پتہ نہیں اس مہنگائی نے سب لوگوں کے لیے ہی مشکلیں کھڑی کر دی ہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا مجھے یہ کام کرتے ہوئے، لیکن میں آج تک ترقی نہیں کر سکا۔ نہ جانے کب ترقی کروں گا، کب اچھا گھر بناؤں گا۔ ماں جی، کام کے حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ میں بہت پریشان رہنے لگا ہوں۔ اب تو دن کا گزر بسر کرنا بھی مشکل لگ رہا ہے۔ ماں جی، آپ کوئی دعا کریں میرے لیے، میری بیوی کے لیے۔ اوپر والا ہمارے لیے کچھ آسانیاں پیدا کرے۔ کبھی نہ کبھی تو اچھے دن آئیں گے۔ ماں جی، آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ میں آپ کو باہر ڈھونڈ رہا ہوں۔ مجھے آپ دونوں سے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ میں اب کھیتوں میں مزید کام نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ زمین کا ٹکڑا بیچ کر کوئی کاروبار شروع کر دوں گا۔ میری بیوی بھی یہی چاہتی ہے۔ میں اب مزید آپ کا اور اپنے اس چھوٹے نکھٹو بھائی کا مزید خرچہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ اپنا انتظام چھوٹے بھائی کے یہاں کر لیں۔ ارے بھائی، میرے تو حالات پہلے ہی بہت خراب ہیں۔ میں ماں جی کو وہی تو بتا رہا تھا کہ میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، دکان پر بھی کام نہیں ہوتا۔ دن بدن زندگی گزارنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ بھائی آپ ایسا نہ کریں، مجھے اس طرح ہی رہنے دیں، ہم مل کر گزارا کر لیں گے۔ میں بھی آپ کے ساتھ کوئی اور کام کروں گا، محنت مزدوری کروں گا اور آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ آپ برائے مہربانی ایسا مت کریں۔ دیکھو بیٹا، تم دونوں ہی میرے بچے ہو، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ اگر تم مجھے نہیں رکھنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، میں اناتھ آشرم چلی جاؤں گی، کہیں اور چلی جاؤں گی۔ بیٹا تم دونوں میرے لیے پریشان مت ہو۔ چھوٹے، تو بھی میرے لیے پریشان مت ہو۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں کہیں اور گزر بسر کر لوں گی۔ تم دونوں میرے لیے بالکل پریشان مت ہو۔ نہیں ماں جی نہیں،
आप मेरे होते हुए कहीं नहीं जाएंगी, आप मेरे साथ रहेंगी। अगर भाई आपको नहीं रखता तो कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको कोशिश करूँगा कि हर तरह का सुख दूँ। आप मेरे होते हुए कहीं भी नहीं जाइएगा, बस आप मेरे साथ रहें माँ जी, आप मेरे साथ रहें हमेशा हमेशा। आज मैंने कारोबार के पहले दिन में 1 रुपया भी नहीं कमाया। ये कहीं माँ जी की बद्दुआ का असर तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपनी बीवी के कहने में आकर माँ को घर से निकाल दिया और उसकी वजह से मेरा सारा कारोबार ठप हो गया? ये मैंने अच्छा नहीं किया। लेकिन मैं कब तक माँ का बोझ उठाता? कभी ना कभी तो मुझे उन्हें खुद से जुदा करना ही था ना, तो आज क्यों नहीं? मैं सारा दिन काम करता थका हारा घर को आया हूँ और तुम आराम से घर में बैठी हो और तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं कि मेरे खाने पीने का कुछ इंतजाम कर लो या कोई काम धंधा कर लो। सारा दिन घर में फारिग बैठ बैठ के थकती नहीं हो क्या? तुम्हें एहसास होना चाहिए कि मैं तुम्हारी खातिर कितनी मेहनत करता हूँ। छोटे की बीवी को देखो जरा, कितनी मेहनत करती है। और तुम्हें मालूम है, उसने तो अब सिलाई सेंटर भी खोल लिया है। वहां वो मोहल्ले के बच्चों को सिलाई भी सिखाती है और उसके साथ साथ पैसा भी कमाती है। हो हेलो हेलो, खबरदार जो मुझे उसका ताना दिया तो मुझसे नहीं होती सिलाइयाँ कढ़ाइयाँ। जो वो फजूल के काम करती है मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं। जब मेरा शौहर कमा रहा है तो मुझे क्या जरूरत पड़ी किसी भी तरह का कोई भी काम करने की। मैं हरगिज कोई काम नहीं करूंगी। घर के काम कर रही हूँ ना, शुक्र अदा करें बस। और खबरदार मुझे दोबारा उसका कोई ताना दिया जो। वो होगी, कमाती भी होगी, लेकिन अपने लिए। मुझे आप इस तरह का कोई ताना दोबारा नहीं देंगे, समझ गए आप? आज फिर मैंने कुछ नहीं कमाया। आज खाली हाथ घर को लौटूंगा। क्या जवाब दूंगा माँ को और बीवी को? दिन ब दिन मेरे हालात तो मजीद खराब होते जा रहे हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कब तक मुझे अपनी बीवी के पैसों पर पलना पड़ेगा? वो मेरी खातिर कितनी मेहनत करती है, सारा दिन सिलाई मशीन के आगे बैठती है और पैसा कमाती है, और मैं हूँ कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। अरे आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूं ना आपके दोनों बाजू बनने के लिए। आपको कभी भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम दोनों साथी हैं, हम दोनों मिलकर एक दूसरे का साथ निभाएंगे और मैं वादा करती हूँ आखिरी दम तक आपका साथ दूंगी। बेटा, कब तक सिलाई मशीन के आगे बैठी रहोगी? थक जाओगी। इतनी मेहनत ना किया करो। अच्छी बेटी हो तुम, बहुत अच्छी बेटी हो। माँ जी, बस थोड़ा सा काम और रह गया है, वो मुकम्मल कर लूं बस। अरे बेटा बस करो ना, मैं कह रही हूँ शाम होती जा रही है, अब आराम कर लो थोड़ी देर, उसके बाद फिर कर लेना। माँ जी, बस थोड़ा सा ही काम बाकी रह गया है। ये कपड़े मुझे आज ही सिलाई कर कर देने हैं और इनका मुझे बहुत अच्छा मुआवजा मिलने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं जल्द अज जल्द ये कपड़े सीकर मालिक के हाथ में दूंगी और उनसे बहुत सा पैसा लूंगी, फिर हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे सब कुछ अच्छा अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे वाह, तुम्हारे पास तो बड़ा पैसा है भाई। इतना पैसा कहाँ से कमा रही हो? अच्छा, तो ये सिलाई मशीनों का मरकज बनाकर बैठी हो, उसी से इतना पैसा कमा रही हो। कितने कमा लेती होगी?
इसे मैं बताती हूँ कैसे पैसा कमाते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, कल जो आपने मुझे ताना दिया था ना, उसका तो मैं हल कर आई हूँ। मैंने उसकी सिलाई मशीनों पर पानी फेंक दिया है और सबकी सब सिलाई मशीनें जलकर राख हो गई हैं। आई बड़ी पैसा कमाने वाली। और दोबारा मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, मुझे आप दोबारा ऐसा कभी नहीं कहेंगे, उससे तो कभी भी नहीं मिलाएंगे मुझे। बेटा बस बस चुप हो जाओ। ऊपर वाले के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। परेशान मत हो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान मत हो। बस बस चुप चुप चुप, बिल्कुल भी नहीं रोते, अच्छी बेटी हो तुम तो। देखना, इसके बदले हमें ऊपर वाला इससे भी बेहतर कुछ देगा। माँ जी देखिए, मैंने बहुत सारी मुर्गियाँ और चूजे खरीदे हैं। अब मैं इनको बेचूंगी और इन मुर्गियों के अंडे बेचूंगी और फिर पैसा कमाऊंगी। देखिएगा, मैं जल्द ही बहुत अच्छा कारोबार खड़ा करूंगी और उससे अच्छा खासा पैसा कमाऊंगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर जरूर। अंडे ले लो, अंडे ले लो, देसी मुर्गी के ताज़ा अंडे, देसी मुर्गी के ताज़ा ताज़ा अंडे। अंडे ले लो, अंडे ले लो, देसी मुर्गी के ताज़ा ताज़ा अंडे, ताज़ा ताज़ा अंडे। हाँ, बेवकूफ आदमी। खड़ा हो जरा तू। ये क्या तरीका है? कितना जलील करवाते हो तुम मुझे दुनिया के आगे। अब मार्केट में अंडे लगाकर बैठ गए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें एहसास नहीं होता कि मेरी कोई जरा थोड़ी बहुत जो इज्जत है उसको भी नीस्तो नाबूद कर दो तुम? कोई और काम नहीं मिला तुम्हें ढंग का जो तुम कर सको अंडे बेचने के अलावा? जहर लगती है मुझे तुम्हारी हरकतें। देखा बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम बहुत जल्द इस कारोबार में भी पैसा कमाओगी। देखा ना, मेरी दुआओं का असर है ये सब। इतने पैसे कमाती हो और मेरा इतना ध्यान करती हो, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। अरे बड़ी बहू, आओ 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 बेटा। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? है छोटी, तूने कोई अंडों का कारोबार शुरू कर लिया है अब, और उससे पैसे कमाकर छुपा रही है मुझसे, मैंने देख लिया है। और हाँ माँ जी, आपको भी बताती चलूं, कोरोना बहुत फैला हुआ है, जरा बच के रहें और घर के अंदर रहें, ज्यादा बाहर घूमने फिरने की जरूरत नहीं है आपको। अरे बेगम, आज मैंने मार्केट में छोटे को अंडे बेचते हुए देखा। इतना गुस्सा आया मुझे, इतना गुस्सा आया, जी चाहता था इसका मुंह तोड़ के रख दूं। बेवकूफ आदमी, जलील करवा दिया मुझे मार्केट में लोगों के सामने। मेरा इतना अच्छा बना बनाया कारोबार है। अरे आप क्यों परेशान होते हैं? उसकी सभी मुर्गियों को जहर दे आई हूँ मैं। अब तक तो सबकी सब मर के खत्म हो गई होंगी। मैं गई थी छुप छुप के दबे पांव, तो पैसे गिन रही थी बैठी, बहुत सारे नोट थे उसके हाथ में। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि ये पैसा उसने इसी मुर्गियों के कारोबार से कमाया है, मुर्गियाँ और अंडे बेच बेच कर। लेकिन मैं उससे कभी भी अपनी बराबरी नहीं करने दूंगी। वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी मेहनत कर ले, मैं उसे अपने बराबर कभी भी नहीं आने दूंगी। देख लेना आप, ये वादा रहा मेरा आपसे। माँ जी, सारी मुर्गियाँ मर गई, सारे चूजे मर गए माँ जी। अरे बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? ऊपर वाला गारत करे उस शख्स को जिसने हमारी मुर्गियों को
जहर दिया और उन्हें मारा। गारत कर दे उसे, बीमार कर दे उसे। कोई मेरे पास आए, मुझे लग रहा है मुझे कोरोना हो गया है। कोई मेरे पास आए, कोई मेरी मदद करे, कोई तो आए। अरे छोटी तुम मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हारी मशीनों पर पानी भी मैंने ही डाला था और तुम्हारी मुर्गियों को भी जहर मैंने ही दिया था। ये सब मुझे उसी का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है उसकी वजह से मुझे भी कोरोना हो गया है। मैंने शायद जो कुछ किया ये उसी की वजह से हुआ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो छोटी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो छोटी।